Very good morning, Jai Hind, and welcome. So once again, I welcome you in this session. Okay, so we are going to discuss one of the most important topic today, and today's class is definitely is going to very you can say effective and very useful. So I hope my voice and everything is fine. ओके, चलिए। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अभी तक हमने जो देखा लैंग्वेज, हमने देखा कि पैरोल क्या है, व्हाट इज पैरोल, व्हाट इज लैंग, कॉम्पिटेंस, व्हाट इज परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वी हैव सीन। Diachronic, synchronic language, we have discussed about diachronic and synchronic language. Okay, so here I'm your mentor Dinesh Kamli Brahmane, and let's begin today's class without getting delay, है ना? Again, let me remind you, this is a discount offer. If somebody wants to get discount or any special offer, then you can use Dinesh10, and using this code you can get 10% discount. Okay, so here I'm okay, this is our team. This is our team, and basically this is the dedicated team in India, in all over the country. They all are qualified UGC NET JRF and now teaching on filler form. Okay, so once again, let me remind you, Unit 5 is going on. Unit 5 is going on, and in this unit, language, basic concept, theories, and pedagogy, we are talking about this language. And today we are going to discuss origin of language and linguistics. First of all, you need to understand what is language, what is linguistics. Basic things are very important. If it's clear, then definitely you can move on. Okay, so when we talk about what are the you can say sources of origin of language, so when we talk about origin of language or linguistics, let us discuss. So as you know, as you know, see, humans are, we are talking about origin, origin के बारे में हम लोग बात करेंगे, we are without getting delay. चलिए, so humans are social animals, everyone is animal on this earth. Everyone is animal on this earth, but humans are social animals. Humans are social animal, यानी humans जो है वो सामाजिक प्राणी हैं, and they need to communicate and convey their message through language. दो चीजें आपको ध्यान रखना है, क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको क्या है, कम्युनिकेट करने की और अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। And definitely, there are so many animals on this earth. There are so many animals on this earth, but they are not social. They are not social. We cannot say. They are just, yeah, they don't have their own language. They don't have their way of expressing. Yeah, some of the animals are very intelligent, but they cannot speak. They cannot speak. They sometimes they don't use their wisdom. So here there is a very basic difference um, among the humans and other animals. That is, the human is a social as well as intelligent animals, you can say. So ये आपको ध्यान रखना है कि uh, social animal, as a social animal, human need to communicate and convey their message through language. This is the need. Now let's see what is language. What is language? So when we talk about language, when we talk about language, तो लैंग्वेज क्या है, हम बात करें तो यहाँ पर द वेज इन विच वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड अदर्स, यानी वो तरीका जिससे हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं और सामने वाला क्या है उस बात को समझ जाता है, वेदर थ्रू स्पोकन, या तो हम बोल करके या लिख करके, रिटन लैंग्वेज आर जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज, ये दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी वो तरीके जिसके माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, जिससे दूसरे हमारी बात को समझ जाते हैं,
वो चाहे हम बोलकर अभिव्यक्त करें या लिख करके अभिव्यक्त करें या जेस्चर के माध्यम से अभिव्यक्त करें, अगर हमारी जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उससे सामने वाला हमारी बात को समझ रहा है, तो वो क्या है, लैंग्वेज है। बट वेयर लैंग्वेज कम फ्रॉम, क्वेश्चन है कि लैंग्वेज आई कहाँ से है, लैंग्वेज आई कहाँ से है, कैसे? भाई मनुष्य की तो जरूरत थी सोशल एनिमल होने के नाते कम्युनिकेट करने के लिए, तो लैंग्वेज आई कहाँ से, कैसे डेवलपमेंट हुआ? हियर वी विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की हम बात अगर करें तो देखिए क्या है। द ह्यूमन माइंड इज सो शार्प, ह्यूमन माइंड क्या है, बहुत शार्प है। इट डजंट सेटिस्फाई अंटिल सीइंग एनी प्रूफ और सर्चिंग इट, है ना? बिल्कुल, ह्यूमन माइंड क्या है, बहुत शार्प है, और ये तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कोई चीज को ये देख नहीं लेता है, सर्च नहीं कर लेता है। तो सर्च करना आदत है ह्यूमंस की, रिसर्च करना। लाइकवाइज द क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज popped up in the minds of previous people, है ना? Likewise, the question of origin of language popped up in the minds of previous people and they began to search for it. तो वैसे ही जो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग, उनके दिमाग में कम्युनिकेट करने के तरीके खोजने के लिए, या यूं कहे भाषा के ओरिजिन के लिए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई बात आती है और वो इसके बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं। No one in the whole world knows now exactly the language formed or came into being. बिल्कुल कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि ये लैंग्वेज यहाँ से ओरिजिन है ना करके आई है, या इसका एग्जैक्ट यही ओरिजिन है, क्योंकि दुनिया में जरूरत के हिसाब से मनुष्य ने क्या है, हजारों लैंग्वेज डेवलप की है। तो एग्जैक्टली यू कैन नॉट से दैट दिस लैंग्वेजेस केम फ्रॉम हियर, ठीक है? क्योंकि है ना, लाखों, सर आप देख सकते हैं लाखों भाषाएं हैं। among the past traces we do not have any evidence of what kind of language was used by our ancestors। हम पास्ट में भी देखें तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है उनके द्वारा कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है। जैसे हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, क्या आज की हिंदी पुराने समय में एज इट इज बोली जाती थी? और अच्छा बोली जाती थी तो कैसे इसका विकास हुआ, हाउ इज इट ऑल, है ना, how did it originated, है ना? सो ये सारी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है, ये फिर ये रिसर्च का विषय है। सो बट इट इज सेड दैट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। बिफोर एनी काइंड ऑफ रिटन लैंग्वेज, ये विश्वास किया गया, लेकिन है ना, इसके बावजूद ये विश्वास किया गया कि रिटन लैंग्वेज के पहले some kind of spoken language was developed between 1 lakh and 50,000 years ago। ये देखिए, रिटन लैंग्वेज के पहले क्या है, रिटन लैंग्वेज के पहले क्या है, स्पोकन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड, है ना, बोली जाने वाली भाषा। यानी पहले जो है, आपने देखा होगा, अभी हमने ऑर्डर भी पढ़ा था लैंग्वेज स्किल में, तो यहाँ पर क्या है, रिटन से पहले स्पीकिंग आता है, वाज डेवलप्ड, यानी जो भाषा है बोली जाने वाली वो डेवलप हुई एक 1 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व। स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हुई पहले, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज, स्पोकन, यानी लोग जो, बिल्कुल डेफिनेटली पहले तो बोलना ही सीखा होगा, मनुष्य की वोकल कॉर्ड से आवाज निकल रही है, बोलना सीखा। देयर आर मेनी थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग थ्योरीज है ना, ओरिजिन को लेकर के कि लैंग्वेज कैसे गिवन बाय लिंग्विस्टिक, अलग अलग लिंग्विस्टिक ने दी है। तो इसमें कौन कौन सी थ्योरीज है, हम लिस्ट तो देखते हैं, लेट अस सी। अलग अलग थ्योरीज है लैंग्वेज के ओरिजिन को लेकर के, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो है ये ओरिजिन है। वेट, ओके, हाँ, यस, गुड मॉर्निंग, माय वॉइस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज फाइन? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए, सी,
द डिवाइन सोर्स। तो कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज है जिससे भाषा का विकास हुआ? पहला डिवाइन सोर्स है, नेचुरल साउंड सोर्स है, द बोबो थ्योरी है, तो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है, द फिजिकल एडेप्टेशन थ्योरी है, द टूल मेकिंग सोर्स है, द जेनेटिक सोर्स है। तो दीज ऑल आर दी एक्सपेक्टेड लैंग्वेज थ्योरीज, है ना, which are on which we can believe that these are the origin of languages। डिवाइन सोर्स को देखें हम, क्या है डिवाइन सोर्स? देयर अपीयर्स टू बी डिवाइन सोर्स इन मेनी रिलीजन्स। बहुत सारी भाषाओं में डिवाइन सोर्स को लेकर एक विश्वास है। हु प्रोवाइड्स ह्यूमंस विद लैंग्वेज, हु प्रोवाइड्स ह्यूमंस विद लैंग्वेज। देयर अपीयर्स टू बी अ डिवाइन सोर्स इन मेनी रिलीजन्स हु प्रोवाइड्स ह्यूमंस विद लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए, डिवाइन सोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक ये बिल्कुल बहुत सारे धार्मिक रूप से माना जाता है अलग अलग धर्मों में। उसमें ये माना जाता है कि अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स हैव अटेम्प्टेड टू रिडिस्कवर दिस ओरिजिन डिवाइन लैंग्वेज। उसमें क्या माना जाएगा कि द हाइपोथेसिस वाज दैट इफ इन्फेंट्स वर अलाउड टू ग्रो अप, मतलब ये डिवाइन सोर्स में क्या है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जिसने, बिल्कुल यहाँ पर ये माना, डिवाइन यानी ईश्वरीय शक्ति, ये माना जाएगा कि ईश्वर ने जो है, गॉड ने जो है भाषा इंसान के दिमाग में फीड करी है। अब यहाँ पर एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई एम गिविंग यू, ध्यान से सुनना। ये माना जाता है कि द हाइपोथेसिस वाज दैट इफ इन्फेंट्स, यानी एक छोटा बच्चा, इन्फेंट, अभी नवजात जो जिसको हम कहते हैं इन्फेंट, वेरी स्मॉल किड्स, वर अलाउड टू ग्रो अप विदाउट हियरिंग, ऐसे है ना, अगर एक बच्चे को हम लोग जो है इस तरीके से उसको बढ़ा करें, उसका जन्म होने के बाद में उसको ऐसी जगह रखें जहां उसको कोई किसी प्रकार का वो सुने नहीं, without hearing any language around them, then they would spontaneously begin using the original God given language। ये देखिए, अगर एक व्यक्ति को बिना सुने, है ना, कोई भाषा को सुने अगर उसको बड़ा होने दिया जाता है, तो डेफिनेटली ऐसा माना जाता है कि एक समय के बाद में वो भाषा वो बोलेगा जो भगवान ने उसको दी है। डिवाइन सोर्स स्पॉन्टेनियसली बिगिन यूजिंग द ओरिजिनल गॉड गिवन लैंग्वेज। और चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो बिल्कुल बिना सुने रह नहीं सकता है। ठीक है, किंग जेम्स द फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, ये देखिए, किंग जेम्स द फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड कैरिड आउट अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट अराउंड 1500। ये देखिए 1500 के आसपास किंग जेम्स ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड द चिल्ड्रन वर रिपोर्टेड टू हैव स्पॉन्टेनियसली स्टार्टेड स्पीकिंग हेब्रू। ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल जन्म के बाद में समाज से, परिवार से, लोगों से दूर रखा गया, जहां से वो किसी प्रकार की भाषा को नहीं सुन पाए, तो फिर बच्चों ने, जो बच्चे थे वो उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया। भाई उन्होंने कोई भाषा तो अब जैसे नया बच्चा, आज मान ले किसी बच्चे का जन्म हुआ, 0 ईयर का है वो, है ना, ऐसे 7 8 10 बच्चे हैं, सब 0 ईयर के हैं, और है ना वो बिल्कुल जो एक ग्रुप में वो बड़े हो रहे हैं, और उनको कोई भाषा सुनाई भी नहीं दे रही है, कोई भाषा उनको आप कह सकते हैं कि उनको हम सुना भी नहीं है, दे आर नॉट लिसनिंग। पर इवन तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं, तो वो बोलना शुरू करते हैं। तो वो कौन सी भाषा बोलना शुरू करते हैं? हेब्रू। हेब्रू ये भाषा बोलते हैं। तो ये किंग जेम्स ने ये इम्प्लीमेंट किया था, कंफर्मिंग दैट किंग्स बिलीव दैट हेब्रू हैड इंडीड बीन द लैंग्वेज ऑफ ईडन। ये देखिए, तो इस पे ये विश्वास किया गया कि हेब्रू ही निश्चित रूप से जो ईडन, आदम और है ना, ईडन, या आप कह सकते हैं ईडन की जो भाषा है, आदम और ईव जिसको हम कहते हैं वहां से, तो उनकी भाषा भी क्या है? हेब्रू, यानी हेब्रू जो है मेन भाषा है, ओरिजिन है। बट इट वाज नॉट करेक्ट फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। लेकिन बाद में देखा गया तो ये नहीं करेक्ट है। मान लो इंडिया में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करे, तो इंडिया वाले यहाँ हेब्रू थोड़ी बोलेंगे, है ना, कुछ और भाषा बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। तो ये लेकिन एक मान्यता थी कि हेब्रू लैंग्वेज जो है डिवाइन सोर्स है। द नेचुरल साउंड सोर्स, नेचुरल साउंड में क्या है? नेचुरल साउंड, नेचर से जो साउंड हमको मिल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेकर। द नेचुरल साउंड सोर्स, नेचर से जो हमें सोर्स साउंड मिल रहे क्या है? द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जसप्री, ये देखिए जसप्रीसन,
ये देखिए जेस्पर्सन सेज क्या कहते हैं, दैट प्राइमेटिव वर्ड्स डिराइव फ्रॉम इमिटेशंस ऑफ नेचुरल साउंड्स, यानी जो बेसिक वर्ड्स हैं, प्राइमेटिव वर्ड्स हैं, वो क्या है, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो साउंड्स आते हैं हमें वहां से लिए गए हैं। दैट अर्ली मेन एंड वुमेन हर्ड अराउंड देम, जो शुरू के मनुष्यों ने सुना होगा, है ना, मनुष्य मेन वुमेन दोनों ने क्या है उन साउंड्स को सुना होगा। और ये क्या है, नई भाषा का डेवलपमेंट हुआ, जैसे पानी की आवाज है, चिड़िया की आवाज है, कोई पक्षी कोई और पशु है उसकी आवाज है, पेड़ पत्तियों की आवाज है, हवा के चलने की आवाज है ना। तो बहुत सारे साउंड्स आप धीरे से सुनेंगे प्रकृति में हमें, है ना। आज प्रकृति को हमने बहुत सारे इन्वायरमेंटल वी हैव डिस्ट्रॉयड, बट एट द टाइम देयर वाज सफिशिएंट एनवायरनमेंट। द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम, ये देखिए, द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम इज ऑलरेडी फंक्शनिंग। ऑडिटरी सिस्टम तो मनुष्य का पहले से ही काम कर रहा था, जन्म होते ही काम करना शुरू कर देता है। बिफोर बर्थ, ये देखिए, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही पेट में ही, है ना, allowing humans to make a connection between a sound and the thing producing the sound, ये देखिए। So the human auditory system is already functioning before birth, allowing humans to make a connection between a sound and the thing producing that sound, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य का जो है जन्म होने से पहले ही, यानी माँ के गर्भ में ही अगर बच्चा है तो वो क्या करता है, वो जो है कनेक्शन करना शुरू कर देता है। यानी वो जो साउंड सुन रहा है ना, वो जो साउंड सुन रहा है और उस साउंड का उस वस्तु से, यानी जो वस्तु प्रोड्यूस कर रही है उसको, है ना, उसका उस साउंड से क्या संबंध है। मेक अ कनेक्शन बिटवीन अ साउंड एंड द थिंग प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। जो साउंड सुनाई दे रहा है और जो चीज उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसके बीच में कनेक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, मान ले, है ना, बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। मान ले एक बच्चा है, माँ के गर्भ में है, और अब ये ना, उसको जो एक काऊ देख लो या डॉग कह लो, किसी की भी एक आवाज उसने सुनी, तो अभी तो अब यहाँ पर ये माना जाता है ऑडिटरी सिस्टम काम करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ अब उसको ये नहीं मालूम है कि ये डॉग है या कुछ भी है, लेकिन उसने जो है साउंड तो सुना, साउंड सुना। जब वो बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो सारे साउंड उसके फीड होते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं बाद में कनेक्ट करता है। तब वो थ्योरी क्या कहती है, देखिए, ओरिजिन लैंग्वेज को लेकर के, तो इन इंग्लिश कुकू एंड कुकू, ये देखिए, कुकू एंड कुकू आर एग्जांपल्स ऑफ ओनोमोटोपिया। क्या कहते हैं, द नेम्स ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड विद देयर साउंड। वो ऐसा, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो नेम है किसी चीज के, वो कहीं ना कहीं उनके साउंड के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं। वेयर अ ह्यूमन ट्राइज टू इमिटेट वेयर अ ह्यूमन ट्राइज टू इमिटेट द साउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए, मेड बाय अदर ह्यूमंस। जहां पर क्या है, मानव क्या करता है, ह्यूमन ट्राइज टू इमिटेट, यानी जो वस्तुएं जो साउंड निकालती है उनको इमिटेट करने का प्रयास करती है, मेड बाय अदर ह्यूमंस। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, ये बोबो और कुकू थ्योरी एग्जांपल देखते हैं इसमें। इन एडिशन टू द कुकू वी हैव, जैसे जैसे स्प्लैश, बैंग, बूम, रेटल, हिस, स्क्रीच एंड ऑफ कोर्स बोबो, ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, ये साउंड्स किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं। देयर आर ओनोमोटोपिया साउंड दैट द नेम्स ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड विद देयर साउंड, बिल्कुल, है ना। स्प्लैश कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ा हुआ है ना, ये सारे। सोशल इंटरेक्शन सोर्स क्या है, सोशल इंटरेक्शन सोर्स में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एंशियंट ह्यूमंस, पुराने जो ह्यूमंस हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एंशियंट ह्यूमंस who lived in larger groups, जो बड़े बड़े ग्रुप में रहते थे, who lived in larger groups because of protection, because प्रोटेक्शन क्यों, जंगल में या कहीं पर रहते हैं तो जानवरों का जो नुकसान, जानवरों से उनको कहीं ना कहीं डर रहता था। प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल यूज्ड टू वर्क इन अ ग्रुप, so they might generate a set of grunts, hums, curses, groans for calling each other, बिल्कुल।
तो क्या है, ये पहले के जो लोग थे वो बिल्कुल लार्जर ग्रुप में रहते थे, एक बहुत बड़े ग्रुप में रहते थे, ताकि वो जो जंगली जानवर हैं उनसे रक्षा हो सके, उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनका सर्वाइवल हो सके। और साथ ही ऐसे कुछ न कुछ, ऐसे कुछ न कुछ आप कह सकते हैं वर्ड्स डेवलप कर लिए, जिससे कि वो एक दूसरे को बुला सके, है ना, एक दूसरे को कॉलिंग कर सके, कॉलिंग ईच अदर। तो इस टाइप की कहीं ना कहीं आवश्यकता के लिए ऐसे वर्ड्स का विकास हुआ। बट इट डज नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। हालांकि ओरिजिन कैसे हुआ इस बात का जवाब नहीं देता है। एज एनिमल्स लाइक चिंपांजीज, जैसे चिंपांजी जो एनिमल है, आल्सो यूज्ड टू कॉल ईच अदर बाय यूजिंग दोज साउंड्स, बट दे डिड नॉट इनिशिएट स्पीकिंग लैंग्वेज। तो चिंपांजी भी इस तरीके के साउंड एक दूसरे के लिए यूज करते थे, लेकिन वो जो है स्पीकिंग लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये मतलब एक मान्यताएं हैं ये। तो फिजिकल एडाप्टेशन क्या है? रादर देन लुकिंग एट डिफरेंट साउंड सोर्सेस, वी लुक एट डिफरेंट डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन विच मेक देम यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्रिएचर्स। कैसे? अदर भाई, जो मनुष्य को, है ना, फिजिकल रिस्पॉन्स है, मनुष्य का जो फिजिकल जो आप कह सकते हैं बनावट है, और जो अदर क्रिएचर्स है, दूसरे जो एनिमल्स है, उसका बिल्कुल अलग है। आप देखिए, आपको इंसान को जो है, मनुष्य में एक जुबान दी है, टंग है, टीथ है, बोलने के लिए वोकल कॉर्ड्स है, सब कुछ है। तो ये सब क्या है, ये मनुष्य को हेल्प करते हैं बोलने के लिए। जैसे लाइक अदर स्पेसीज ऑफ एप्स, है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन टीथ आर नॉट इंक्लाइनिंग, ये देखिए, मनुष्य का ह्यूमन टीथ आर नॉट इंक्लाइनिंग आउटवर्ड्स एंड दैट हेल्प्स देम टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। बिल्कुल, दूसरे जो है ना, उनकी तरह मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, तो बाहर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर इंक्लाइनिंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट इंक्लाइनिंग आउटवर्ड्स, है ना। इसलिए वो क्या है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और ह्यूमन लिप्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स इन, है ना, इन लेंसिंग मसल्स देन एप्स। ये देखिए, ह्यूमन के लिप्स भी क्या है, बहुत ज्यादा हैव मोर कॉम्प्लेक्स इन लेंसिंग मसल्स, है ना। बिल्कुल अलग अलग टाइप के मसल्स हैं, आपके लिप्स भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप दांत है, आपके होंठ है, टंग है, जबान है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बोलने में मदद करते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, in the production of sounds. अब here is an example to illustrate, here is an example to illustrate this point, that in all over the world, ये देखिए, पूरी दुनिया में ये माना जाता है, 1 year babies mostly speak their first word in माँ। ये देखिए, पूरे दुनिया में ये माना जाता है कि जो 1 साल का जो बच्चा होता है, वो सबसे पहले कौन सा साउंड निकालता है? म निकालता है, आर ब, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज देयर पेरेंट्स स्पीक। ये इम्प्लीमेंट हुआ है पूरी दुनिया में। 1 साल का बच्चा जो है, वो शुरू में क्या साउंड निकालता है? म साउंड निकालता है या फिर ब साउंड निकालता है? वो उसके पेरेंट्स कौन सी भाषा बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है। इन एडिशन टू दिस द ह्यूमन माउथ इज स्मॉलर। ये देखिए, एक दूसरी बात ये कि ह्यूमन का जो माउथ है वो कैसा है? स्मॉल है देन अदर स्पेसीज, दूसरे प्राणियों के, दूसरी एनिमल्स के, एंड कैन इजीली मूव फास्टर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य का जो मुंह है वो बहुत ज्यादा इजीली मूव कर सकता है, आप हिला सकते हैं। और बाकी के जो अदर एनिमल्स हैं, उनके मुंह जो है कहीं ना कहीं हार्ड होते हैं, मूव नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर, इन कंपेरिजन टू एप्स द ह्यूमन टंग इज शॉर्टर। ये देखिए, एप्स की तुलना में जो ह्यूमन टंग के से शॉर्टर है, पतली है, थीकर है, छोटी है, पतली है, एंड मस्कुलर विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग साउंड्स थ्रू डिफरेंट शेप्स। ये देखिए, तो यहाँ पर सारा कहीं ना कहीं मनुष्य के टीथ ले लो, लिप्स ले लो, आपके जो माउथ पूरा वाला ओरल ले लो, टंग ले लो, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है, छोटी है, पतली है, इजीली मूव कर सकती है, बहुत ज्यादा आपने मुड़ भी जाती है, ऐसा। तो वॉइस बॉक्स, यानी जो हमारा वोकल कॉर्ड से मैंने आपसे कहा, हमारा जो गले में होते वोकल कॉर्ड, जहाँ से साउंड निकलता है,
ऑफ ह्यूमंस आल्सो कॉल्ड लेरिंग्स, उसको क्या कहा जाता है, लेरिंग्स कहा जाता है, is also clearly different from other species through which they easily can produce sounds. तो ये वोकल कॉर्ड्स भी, तो ये सारे जो सिस्टम है, फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल जो सिस्टम है मनुष्य के, वो कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, और ऐसा अदर एनिमल के पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अब देखा हमने कि आपके टीथ है, आपके लिप्स हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना, आपके पूरा ओवरऑल मुंह है, टंग है, वो ये सब कुछ क्या है, साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। द टूल मेकिंग सोर्स क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द ट्रेसेस ऑफ टूल मेकिंग आर एविडेंस दैट प्रीवियस ह्यूमंस यूज देयर ब्रेन्स टू वर्क। ये देखिए, the traces of tool making are evidence that previous humans use their brain to work। ये देखिए, जो पुराने लोग होते थे वो अपने ब्रेन का यूज करते थे काम के लिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है, जो ब्रेन की बात हो रही है, तो इसमें जो हमारा लेफ्ट ब्रेन, सॉरी, द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। ये देखिए, बिल्कुल हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, हमारा जो राइट ब्रेन ब्रेन होता है ना, हेमिस्फेयर यानी दोनों तरफ, आप लेफ्ट एंड राइट। अभी वीडियो नहीं चल पा रहा है तो बताता आपको, बिल्कुल आपको मालूम है। तो ये क्या है, द ह्यूमन ब्रेन हैव डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टू परफॉर्म, दोनों के, लेफ्ट ब्रेन का जो फंक्शन है वो बिल्कुल परफॉर्म करने का अलग है, राइट का अलग है, बिल्कुल, है ना, इसीलिए। सो एट द इनिशिएटिव इन एट द इनिशियल स्टेज इट सीम्स दैट the previous humans was used to indicate the object by using a single sound in this environment। तो ये माना जाता है कि जो पुराने जो लोग थे, वो किसी ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट है उसको इंडिकेट करने के लिए बिल्कुल सिंगल साउंड निकालते थे, ठीक है। बट आफ्टर टाइम, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ह्यूमन प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज बाय कंबाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग सिंगल वर्ड्स रेफर्ड टू अ सर्टेन सिचुएशन। बिल्कुल, शुरू में तो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ड, लेकिन धीरे 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 क्या है, बहुत सारे वर्ड लिए, कंबाइन किए उनको, ऑर्गेनाइज किया उनको, है ना, और एक सर्टेन सिचुएशन को इंडिकेट करने तक पहुंचे। यानी एक एक शब्द का, एक एक लेटर का पहले डेवलपमेंट हुआ। आज हम 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी वी आर हियर स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं कि हम बहुत लकी है कि सब कुछ हमें पका पकाया मिल रहा है, हमें लैंग्वेज पक्की पकाई मिल रही है। टेक्नोलॉजी के उस दौर में हम लोग हैं जहाँ बिल्कुल चेंजेस पे चेंजेस आते जा रहे हैं, 2G से 4G में आए, 4G से 5G, 5G 6G में हम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो चुका है। तो उस दौर में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे क्या है, बहुत सारे परिवर्तन हम देख भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। अभी आप घर पे बैठे हैं, लेकिन आई एम टीचिंग यू हियर फ्रॉम हियर, है ना, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिंगल वर्ड्स रिफर टू सर्टेन सिचुएशंस, तो अनेक यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, अनेक वर्ड्स का यूज होने लगा। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन स्टार्टेड बाय यूजिंग देयर नेमिंग एबिलिटी टू मैसेज। ये देखिए, बिल्कुल मनुष्य ने क्या है, किसी चीज को नाम से पुकारना शुरू किया, मैं मैसेज बिल्डिंग कैपेसिटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। बिल्कुल मनुष्य ने क्या है, नेमिंग एबिलिटी एक तरीके से ले आए, जिससे उनके अंदर लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आ जाए। दिस एबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन अदर प्राइम। ये जो एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, दूसरे प्राइमेटिव प्राइमेट्स या दूसरे जो एनिमल्स उसमें नहीं है, एंड मेक्स ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेसीज। बिल्कुल, जो अदर स्पेसीज है या दूसरी जो प्रजातियां हैं, उससे मनुष्य को क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द जेनेटिक सोर्स। क्या कह रहा है, जेनेटिक
चलिए, so let us start. Wait. See. तो यहाँ पर ये सारे जो थ्योरीज हैं ये लैंग्वेज को लेकर के हैं। इसमें ये जेनेटिक सोर्स क्या कह रहा है, देखिए जेनेटिक सोर्स क्या कह रहा है, एट बर्थ हैपनिंग यार, my voice is coming, am I audible? I think there is network issue, there is network issue, it's not good, है ना? So am I audible? Once again confirm me. There is network issue due to this, because yeah, now it's coming now, but I have been teaching for last 30 minutes, and but class is just 17 minutes has been recorded, so there is a technical issue. Let's see, है ना, let's see, देखते हैं हम लोग। चलिए, जेनेटिक सोर्स क्या कह रहे हैं कि जैसे एट बर्थ द लेरिंग्स ऑफ अ ह्यूमन बेबी इज लाइक दैट ऑफ अ चिंपांजी। बिल्कुल ऐसा मान अब देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसके जो लेरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड्स है गले में जो होते हैं जहाँ साउंड प्रोड्यूस, वो लगभग चिंपांजी के वोकल कॉर्ड्स की तरह है, चिंपांजी के वोकल कॉर्ड्स की तरह है। देन आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द लेरिंग्स ड्रॉप्स, द ब्रेन डेवलप्स एंड द इन्फेंट स्टार्ट्स टॉकिंग एंड वॉकिंग। बिल्कुल, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या है, लेरिंग्स क्या है, थोड़े से ड्रॉप होते हैं, ब्रेन का विकास होता है, और बच्चा जो होता है, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, बिल्कुल स्मॉल, साल 2 साल का आप मान लीजिए, वो धीरे धीरे क्या है, वॉकिंग करना और स्टॉकिंग करना शुरू कर देता है। दिस थिंग मेड स्कॉलर्स लुक इनटू अदर फैक्टर्स दैट दोज फिजिकल सोर्सेस फॉर लैंग्वेज। बिल्कुल, तो ये चीज जो है दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये देखने के लिए प्रेरित करती है कि किस तरीके से अदर जो फिजिकल सोर्सेस है उसके अलावा भाषा का विकास हुआ। तो ये जेनेटिक, इवन चिल्ड्रन हु आर बोर्न डेफ, यहाँ तक कि जो बच्चे बिल्कुल बचपन से सुन नहीं सकते, डेफ जन्म हुआ है, बिकम फ्लुएंट साइन लैंग्वेज यूजर्स वेरी अर्ली इन लाइफ। ये देखिए, जो बच्चे बिल्कुल शुरू से ही वो डेफ है ना, उनको क्या मतलब, ये क्या मतलब, क्या कैसे, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, वो उनको कैसे पता कि किस भाषा का क्या महत्व है, बिल्कुल बचपन से वो तो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या है, साइन लैंग्वेज को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना सीख जाते हैं वेरी अर्ली इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं जो है मनुष्य का जो है ब्रेन डेवलप होने लग जाता है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आर बोर्न विद अ स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज, है ना। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आर बोर्न विद अ स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। बिल्कुल, तो हम मनुष्य का जो है कहीं ना कहीं कैपेसिटी बोलने की स्पेशल है, इट इज इनेट, नो अदर क्रिएचर सीम्स टू हैव इट, एंड इट इजंट बाउंड टू अ स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। ये देखिए, इट इज इनेट, नो अदर क्रिएचर्स, यानी दूसरे क्रिएचर्स में इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक वेराइटी लैंग्वेज को लेकर के नहीं दिखाई देती है, मनुष्य के पास ही है। द बोबो थ्योरी क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये बोबो थ्योरी क्या कहती है, लैंग्वेज बिगेन व्हेन आवर एंसेस्टर्स, जब हमारे पूर्वज स्टार्टेड इमिटेटिंग द नेचुरल साउंड्स अराउंड देम। ये देखिए, तो वही है, हमारे जो एंसेस्टर है
उनके आसपास जो नेचुरल साउंड है उसको उन्होंने इमिटेट करना शुरू किया, उसका अनुसरण करना शुरू किया। The first speech was onomatopoeia, marked by echoic words such as moo, meow, splash, cuckoo, ये सारे है ना, अभी हमने पढ़े थे वही है। What's wrong with this theory? इसमें रॉन्ग क्या है, मतलब गलत क्यों हुई है? Relatively few words are onomatopoeia and these words vary from one language to another। बिल्कुल। अब ये भी यूनिवर्सल नहीं है ना भाई, हमने कहा कि ये जो म्यू है, म्याओ है, स्प्लैश है, लेकिन ये वर्ड्स यूनिवर्सल नहीं है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाएंगे तो इन्हीं के, यहाँ एक बार इंग्लिश में स्प्लैश कह रहे, किसी और भाषा में इसको कुछ और कहेंगे, यहाँ पर म्याओ कह रहे, किसी और भाषा में कुछ और कहेंगे, तो वेरी करना, वेरी मतलब डिफरेंट। ध्यान रखना, ये एक होता है VERY वेरी, तो वहां जो है वो वेरी मतलब बहुत होता है, और VARY का मतलब होता है डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस, a dog's bark is heard as au au in Brazil। ये देखिए, उदाहरण के लिए हम है ना ऑब्जेक्ट के साउंड की बात करें तो जो डॉग्स होता है, जो डॉग है ना, उसका जो डॉग का जो बार्क होता है, उस जो डॉगी का जो आवाज निकालना है, ब्राजील में उसको आओ आओ कहते हैं हम लोग, है ना। हम इन अल्बेनी, हम, और ये वैंग वैंग इन चाइना, है ना, वैंग वैंग इन चाइना, ठीक है ना। ये चाइना में उसके ये बिल्कुल अलग अलग साउंड डॉग के, और हमारे यहाँ पर क्या है, भो भो। इंडिया में क्या है, भो भो। तो ये कैसे भाई, एक ही ऑब्जेक्ट है कि डॉग, ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, लेकिन उसका साउंड निकालना अलग अलग देशों में अलग अलग माना जाता। ब्राजील में आओ आओ मानते हैं उसको, अल्बेनिया में ये सोचते हैं कि कुत्ता जो है हम करता है ना, चाइना वाले मानते हैं कि वो वैंग वैंग करता है और इंडिया में क्या है, भो। दीज आर दी In addition, many onomatopoeic words are of recent origin and not all are derived from natural sound। तो सभी जो है नेचुरल साउंड से डेवलप नहीं हुए हैं। द डिंग डोंग थ्योरी क्या कहती है? द डिंग डोंग थ्योरी, दिस थ्योरी फेवर्ड बाय प्लेटो। बिल्कुल, डिंग डोंग थ्योरी को प्लेटो ने भी समर्थन दिया है। एंड पाइथागोरस क्या मेंटेन्स दैट स्पीच अरोज इन रिस्पॉन्स टू द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर। बिल्कुल, यानी जो स्पीच है, जो भाषण है, जो आवाज है, वो कहीं ना कहीं इन रिस्पॉन्स टू द एसेंशियल क्वालिटीज, जो ऑब्जेक्ट की एसेंशियल क्वालिटीज होती है पर्यावरण में, उसके आधार पे, यानी किसी चीज की क्वालिटीज के आधार पर ये डेवलप हुआ है। द ओरिजिनल साउंड्स पीपल मेड वर सपोजेडली इन हार्मनी विद द वर्ल्ड अराउंड देम। ये देखिए, द ओरिजिनल साउंड्स पीपल मेड वर सपोजेडली इन हार्मनी विद द वर्ल्ड अराउंड। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके आसपास जो दुनिया है, उसके आसपास जो दुनिया, उसके हिसाब से क्या है, साउंड्स का ओरिजिन हुआ है। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थ्योरी? Apart from some are instances of sound symbolism, there is no persuasive evidence in any language of an innate connection between sound and meaning। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी कमी ये है, यूनिवर्सल नहीं है भाई। इंडिया में किस चीज को लेकर के जो बात या जो साउंड निकल रहा है, वो जरूरी नहीं कि दूसरी भाषा में भी जाके निकले, तो ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। द ला ला थ्योरी क्या है? द डेनिश लिंग्विस्ट ओट्टो जेस्पर्सन suggested that language may have developed from sounds associated with love, play and especially song, है ना। तो लव, प्ले और सॉन्ग से कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलप हुई है। तो इसमें भी दिक्कत क्या है? एज डेविड क्रिस्टल नोट्स हाउ लैंग्वेज वर्क्स, है ना, हाउ लैंग्वेज वर्क्स 2005 में आया है, पेंगुइन। दिस थ्योरी स्टिल फेल्स टू अकाउंट फॉर द गैप बिटवीन द इमोशनल एंड द रेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। ये देखिए, द गैप बिटवीन द इमोशनल एंड द रेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, आप कह सकते हैं कि जो इमोशनल होता है, हमारा इमोशंस होते हैं, और जो रेशनल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है उसमें, इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो गई। द पोपो थ्योरी क्या कह रही है? दिस थ्योरी होल्ड द स्पीच बिगिंस विद इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन मतलब जो एक्सक्लामेशन होता है, आश्चर्य हम व्यक्त करते हैं, स्पॉन्टेनियस कैरीड आउट, है ना। जैसे पेन है, आपको दर्द हुआ, अचानक दुख हुआ, दर्द हुआ, कहीं आपको कांटा चुभ गया, तो आपको बोलते आउच,
है ना। तो ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, हमारे इमोशंस को हम इमीडिएट एक्सप्रेस करते हैं। मान लिया आपके पाँव में अचानक कांटा चुभ गया तो आप क्या बोलेंगे, आउच। आपको अचानक कोई सरप्राइज मिलता है तो ओहो। एंड अदर इमोशंस है तो, है ना, याबा डब्बा, है ना, यब्बा डब्बा डूब, जो भी आपको ठीक लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंटरजेक्शंस, तो ये, लेकिन केवल हम इंटरजेक्शन से ही भाषा को डेवलप माने तो ये भी संभव नहीं है। नो लैंग्वेज कंटेन्स वेरी मेनी इंटरजेक्शंस, बहुत सारे लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं इंटरजेक्शन। एंड क्रिस्टल पॉइंट्स आउट the clicks, intakes of breath, and other noises which are used in this way bear little relationship to the vowels and consonants found in phonology. तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली हम ये देखें कि केवल इंटरजेक्शंस, क्योंकि बहुत सारी भाषा में बहुत सारे इंटरजेक्शंस नहीं है, सिलेक्टेड इंटरजेक्शंस ही होते हैं, तो ये थ्योरी भी फेल है। द ये है हो थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी language evolved from the grunts, grooms and shots evoked by heavy physical labor। तो ये अलग अलग थ्योरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये ग्रंट्स ग्रूम्स, ये कुछ वर्ड्स इनसे डेवलप हुई है। दो दिस नोशन में अकाउंट फॉर सम ऑफ द राइथमिक फीचर ऑफ लैंग्वेज, इट डजंट गो वेरी फार इन एक्सप्लेनिंग वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम। तो इसमें भी नहीं बताते कि वर्ड कहाँ से आए हैं। तो ये बहुत सारी तो फाइनली हाउ एंड व्हाई लैंग्वेज ओरिजिनेटेड, कैसे भाषा का विकास हुआ, अब इन सारी जो थ्योरीज को मिला। सो इट माइट क्लियर नाउ दैट इट इज बिग पजल, अभी भी ये पजल है, एज टू हाउ लैंग्वेज बिगेन, बट व्हाई लैंग्वेज बिगेन सीम टू रादर क्लियर। तो यहाँ पर जो हाउ का जवाब ढूंढना बड़ा कठिन काम है कि कैसे भाषा का विकास हुआ, लेकिन व्हाई का जवाब ये है कि मनुष्य की आवश्यकता थी कम्युनिकेशन करने के लिए, इसलिए भाषा का विकास हुआ। कैसे हुआ, पूरी दुनिया में अलग अलग थ्योरी है। लैंग्वेज मस्ट इवॉल्व बिकॉज ह्यूमंस नीडेड, बिल्कुल ह्यूमंस की जरूरत थी, व्हाई का जवाब मिल रहा हमें। इट फॉर द फॉलोइंग पर्पस, क्या क्या पर्पस थे भैया मनुष्य के जिससे भाषा का विकास हुआ। टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे कमांड, बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए, कमांड्स को कन्वे करने के लिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन टॉकिंग। टू कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग, टू मेंटेन सोशल कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ सोशल चिट चैट और स्मॉल टॉक। ये देखिए चिट चैट, है ना, सोशल चिट चैट और स्मॉल टॉक, ये देखिए चिट चैट, है ना, सोशल चिट चैट। तो ये जो है ये आपको कहीं ना कहीं ये आवश्यकता थी, इसलिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। फॉर एस्थेटिक रीजंस, जैसे पोएट्री लिखना हो उसकी भी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी। चलिए, फिर तो रिलीव नर्वस टेंशन, एक दूसरे से बात करके, तो दीज आल दी, है ना। तो फिर फाइनली प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो इसको हम कल देखेंगे। तो आज के लैंग्वेज ओरिजिन को लेकर बात करी हमने और कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हम कल देखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यू आ रहा है आई थिंक। ठीक है, एट सिनेमा फॉर टुडे मिलते हैं इसको, ठीक है, थैंक यू, है ना।